عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی کے 99 حمایت یافتہ آزاد امیدوار کامیاب، نون لیگ نے 71 اور پیپلز پارٹی نے 54 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ متحدہ قومی موومنٹ 17، پاکستان مسلم لیگ کاف 3، جمعیت علماء اسلام اور استحکام پاکستان پارٹی 2 نشستیں جیت چکی ہیں۔ سندھ میں پی پی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی پارٹی بن گئی۔ صوبے کی 297 میں سے 144 جنرل سیٹیں مسلم لیگ نون نے حاصل کر لی ہیں۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے 135 نشستیں جیت لی ہیں۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی 130 میں سے 84 جنرل نشستیں جیت کر صوبے میں دوبارہ حکومت بنانے کے قابل ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے 115 میں سے 90 جنرل نشستیں جیت لی ہیں۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی 51 میں سے 11 جنرل نشستیں جیت کر صوبے کی بڑی جماعت بن گئی۔ انتخابی تاریخ میں عام انتخابات کے دوران پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں 100 سے زائد نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ سندھ اسمبلی کی 130 نشستوں میں 84 پر کامیابی کے بعد پیپلز پارٹی کو 20 خواتین کی مخصوص نشستیں ملیں گی۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے لیے درکار نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ برا پارٹی کے صوبائی صدر علی امین گنڈا پور متوقع طور پر اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ امیدواروں نے چترال، ایبٹ آباد، سوات، چارسدہ، سوابی، نوشہرہ، مہمند، خیبر، مردان اور بنو سے کامیابی سمیٹی۔ اس سلسلے میں کامیاب ہونے والے نامزد ارکان کی وفاداریاں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے تحریری حلف نامہ لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے مخلوط حکومت بنانے کے متعلق نواز شریف کا پیغام پہنچا دیا۔ ملاقات نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے گھر میں ہوئی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے۔ دونوں جماعتوں نے مل کر ساتھ چلنے اور حکومت سازی کے لیے رابطے اور ملاقاتیں جاری کرنے پر اتفاق کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ انتخابات میں ہماری نشستیں 150 کے قریب ہیں۔ امید ہے کہ ہم حکومت سازی کو پہنچ جائیں گے۔ آزاد امیدواروں کی کامیابی کے بعد پی ٹی آئی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، علی محمد خان سمیت پارٹی کے اہم رہنما شریک ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار ریحانہ ڈار نے سیالکوٹ کے حلقہ این 71 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ آصف کی کامیابی اور فارم 47 کا نتیجہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ موقف اختیار کیا کہ خواجہ آصف نے مبینہ ملی بھگت سے فارم 47 میں خود کو فاتح قرار دیا۔ فارم 45 کے نتائج ہمارے پاس موجود ہیں۔ عدالت دوبارہ این 71 میں گنتی کا حکم دے کر فارم 47 کا نتیجہ کل عدم قرار دے۔ ملتان میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی جیت خطرے میں پڑ گئی۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار بیرسٹر تیمور الطاف نے ووٹوں کی گنتی چیلنج کر دی۔ تیمور الطاف کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس 99% پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 موجود ہیں، جن کے مطابق مجھے یوسف رضا گیلانی پر 7000 سے زائد ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے فافین نے ابتدائی مشاہدے کی جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ فافین کی چیئرپرسن مسرت قدیم نے میڈیا کو لائیو بریفنگ میں بتایا کہ ملک میں ٹرن آؤٹ 48% رہا۔ انتخابات کے انعقاد سے بے یقینی کا دور بند ہو گیا ہے۔ امیدواروں کی شکایت کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جلد حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انتخابات میں شفافیت پولنگ اسٹیشن تک محدود رہی۔
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने आम इंतखाबात 2024 के कामयाब इनेकाद पर पूरी पाकिस्तानी कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है। कहा, इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शफा बख्श राब्ते की जरूरत है। पोलराइजेशन और इंतशार 250 मिलियन आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन के दौरान इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर फिक्रमंद हैं, गैर जरूरी पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाना जरूरी है, चाहे कोई सियासी जमात पाकिस्तान में हुकूमत बनाए। बरतानिया ने कहा कि पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई, ताहम इंतखाबात में वोट डालने वालों की तारीफ करते हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून ने कहा कि कुछ सियासी रहनुमाओं को इंतखाबात में शिरकत से रोकने के लिए कानूनी तरीकाकार का गलत इस्तेमाल किया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान की पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने की वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद उन्हें अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। अदालत ने शेख रशीद की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 2 लाख रुपए के जमानती मशरके जमा करवाने की हिदायत की थी। मारूफ अदाकारा और मेजबान इफ़त उमर ने आम इंतखाबात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार ओन चौधरी की जीत को मजाक करार दे दिया। इफ़त उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि सलमान अकरम राजा का हारना और ओन चौधरी का जीतना इलेक्शन 2024 का सबसे बड़ा मजाक है। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में किसी भी सियासी जमात का नाम लिए बगैर कहा कि फजूल की हरकतें करना बंद करें और कबूल करें, अब आवाम आपके हाथ से निकल गई है। शोबिस इंडस्ट्री की साबका अदाकारा नूर बखारी ने शोहर ओन चौधरी की जीत नाहजम होने वालों को खरी खरी सुना दी। शोहर की कामयाबी के बाद अदाकारा की सोशल मीडिया पोस्टों पर सारफीन ने नामुनासिब तबसरे किए, जिस पर नूर बखारी ने इंस्टाग्राम स्टोरी में कमेंट्स करने वालों को आईना दिखा दिया और कहा कि जिन अफराद को अपने घर में सालन में दूसरी बोटी नहीं मिलती, वो भी सोशल मीडिया पर आकर मारूफ शख्सियात के खिलाफ लिखते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन की ट्रॉफी की रोनमाई की तकरीब 13 फरवरी को होगी। 9वें एडिशन की रोनमाई के हवाले से तकरीब फ्रेंचाइज मालिकान और खिलाड़ियों की मौजूदगी में गोल्फ कोर्स और तफरीही पार्क ज़ेर गौर है, जबकि 1-2 रोज में ट्रॉफी वेन्यू को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के ज़ेर तमाम ITF जूनियर चैंपियनशिप आज से PTF टेनिस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में शुरू होगी। चैंपियनशिप में बॉयज सिंगल्स और डबल्स और गर्ल्स सिंगल्स एंड डबल्स के मुकाबले शामिल हैं। चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड आज से शुरू होंगे, जबकि मेन राउंड 12 फरवरी से शुरू होगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि फालिया हल्का NA-69 और PP-42 के सरकारी नताइज का ऐलान हो चुका है। NA-69 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी नासिर इकबाल बोसाल 1,13,285 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आजाद उम्मीदवार कौसर परवीन 1,88,078 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही हैं। PP-42 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खालिद महमूद रांझा 39,767 वोट लेकर कामयाब और आजाद उम्मीदवार
चौधरी साजिद अहमद खान भट्टी 35,945 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि फालकिया हल्का NA 69 और PP 42 के सरकारी नताज का ऐलान हो चुका है। NA 69 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी नासिर इकबाल बोसाल 1,13,285 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आजाद उम्मीदवार कौसर परवीन 1,88,078 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही हैं। PP 42 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खालिद महमूद रांझा 39,767 वोट लेकर कामयाब और आजाद उम्मीदवार चौधरी साजिद अहमद खान भट्टी 35,945 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। दूसरी जानिब चिश्तिया में एक कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों का फाइनल नतीजा आ गया है। NA 162 से नून लीग के उम्मीदवार एहसानुल हक बाजवा 1,14,350 वोट लेकर कामयाब हो गए। आजाद उम्मीदवार चौधरी खलील 97,870 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह PP 244 से आजाद उम्मीदवार सुरैया सुल्ताना 50,625 वोट लेकर पहले नंबर पर रहीं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार अब्दुल मजीद जताला 49,421 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 243 की बात करें तो वहां से नून लीग के उम्मीदवार जाहिद अकरम 48,555 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आजाद उम्मीदवार खदीजा खानम 46,344 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। आपको एक बार फिर बताते चलें, चिश्तियां से एक कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों का फाइनल नतीजा आ गया है, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली के हल्का NA 162 से नून लीग के उम्मीदवार एहसानुल हक बाजवा 1,14,350 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार चौधरी खलील 97,870 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह PP 244 से आजाद उम्मीदवार सुरैया सुल्ताना 50,625 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि नून लीग के उम्मीदवार अब्दुल मजीद जताला 49,421 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 243 से नून लीग के उम्मीदवार जाहिद अकरम 48,555 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि आजाद उम्मीदवार खदीजा खानम 46,344 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की पाकिस्तान हाउस आमद, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं को आम इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध का कहना है कि इंतखाबात के नताइज से जाहिर होता है कि MQM एक अहम सियासी जमात है। डॉक्टर फारूक सत्तार मुस्तफा कमाल कहते हैं कि शहर कायद के वोटर्स ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हक में फैसला दे दिया। शहर कायद की रोशनियां वापस लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। मुखालफीन के मनफी हथकंडों के बावजूद अवाम की हिमायत से MQM के नुमाइंदे कामयाब हुए। पत्तोकी के हल्का NA 134 से नून लीग के उम्मीदवार राना मोहम्मद हयात खान ने सरदार अयाज नकई को शिकस्त देकर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है। PP 184 में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान ने राना असलम को बआसानी शिकस्त दे दी। PP 183 में साबिक सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद आसिफ नकई को मुस्लिम लीग नून के नौजवान उम्मीदवार राना सिकंदर हयात खान ने 12,000 से जायद वोटों से शिकस्त दी। PP 182 के महमूद अनवर चौधरी ने अकील असरम आराई को 919 वोटों से शिकस्त दे दी। रिटर्निंग अफसरान ने जिला बनू के एक कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के गैर हतमी नताइज जारी कर दिए हैं। NA 39 पर PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार नसीम अली शाह 1,40,270 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं, जबकि JUI के उम्मीदवार साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी ने 1,10,103 वोट हासिल किए हैं। सूबाई असम्बली के हल्का P के 99 पर आजाद उम्मीदवार जाहिदुल्लाह खान वजीर ने 27,669 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जबकि JUI के शेर आजम वजीर ने 26,645 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह सूबाई असम्बली के हल्का P के 100 पर आजाद उम्मीदवार पख्तून यार खान ने 30,925 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली, जबकि JUI के अकरम खान दुरानी ने 23,909 वोट हासिल किए हैं। सूबाई असम्बली के हल्का P के 100A पर JUI के उम्मीदवार अदनान वजीर ने 25,513 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली, जबकि इसके मुकाबले में आजाद उम्मीदवार शाह मोहम्मद खान ने 21,369 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह सूबाई असम्बली P के 102 पर इकरामुल्लाह दरानी ने 39,061 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की, जबकि आजाद उम्मीदवार मलिक अदनान खान ने 35,825 वोट हासिल किए हैं।
और नाजरीन, लकी मरवत में उम्मीदवारों की जीत की खुशी में हवाई फायरिंग का नतीजा ये निकला कि मीर आजम मचन खेल में हवाई फायरिंग से मौलाना मोहम्मद रजा हलीमी जाँ बहक हो गए। मरहूम मदरसा शमसुल अलूम गंदी खान खेल के मोहतमम भी थे। आम इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों की जीत की खुशी में हवाई फायरिंग ना रुक सकी। आपको एक बार फिर बताते चले, लकी मरवत में उम्मीदवारों की जीत की खुशी में हवाई फायरिंग के नतीजे में मीर आजम मचन खेल में मौलाना मोहम्मद रजा हलीमी जाँ बहक हो गए। मरहूम मदरसा शमसुल अलूम गंदी खान खेल के मोहतमम भी थे। आम इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों की जीत की खुशी में हवाई फायरिंग नहीं रुक सकी। और नाज़रीन, गोली लगने से जाँ बहक होने वाले मौलाना मोहम्मद रजा हलीमी कत्ल के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने गंडी चौक पर इंडस हाईवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। रोड बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर FIR दर्ज करने का मुतालबा कर दिया है, जबकि मकतूल जमीयत उलमा इस्लाम लकी मरवत की जिला मजलिस आमला के रुकन थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि पुलिस और इंतजामिया फौरी तौर पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। ओगी में PK-39 से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इकराम गाजी ने फतह अपने नाम कर ली। जीत की खबर सुनते ही अवाम का सैलाब उमड़ आया। PTI के वर्कर्स ने ढोल की थाप पर खुशी का इजहार किया। मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों की शक्ल में मुबारकबाद देने पहुंच गए। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान हारूनी। PK-39 उगी से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इकराम गाजी ने आम इंतखाबात इलेक्शन 2024 फतह अपने नाम करके PK-39 से MPM मुंतखब हो गए। इकराम गाजी ने 23,853 वोट हासिल किए, जबकि मद्दे मुकाबल PMLN के उम्मीदवार एडवोकेट आरिफ कलंदर ने 19,331 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इकराम गाजी की जीत की खबर सुनते ही अवाम का सैलाब उमड़ आया। PTI के वर्कर्स नौजवानों ने ढोल की थाप पर खुशी का इजहार किया और मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों की शक्ल में मुबारकबाद देने उगी पहुंचे। इस मौका पर इकराम गाजी अपने वर्कर्स के हमरा उगी हाई स्कूल रशीदा ग्राउंड पहुंचे, जहां सबका शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरे भाइयों, यहाँ पे अब की बार सिर्फ वर्कर सरकार आई है। मेरे भाइयों, मुझे लीडर बनने का कोई शौक नहीं, मैं आप में से हूँ, तभी तो आपको मिन्नतें कर रहा हूँ। आपकी जुर्रत का सलाम। इस मौका पर PTI योगी की क़यादत अजमल स्वाति, हबीब बसीहल, एडवोकेट अरफानुल्लाह, साजिद सजू, अदनान खान व दीगर भी इकराम गाजी के हमरा रहे। इकराम गाजी ने आवाम को यकीन दहानी करवाई कि वो एक गरीब घराने का बेटा है, इसलिए गरीब की सबसे पहले दाद रसी करेगा। साथी रिपोर्टर। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शाजिया मरी और जाम शबीर अली खान की कामयाबी की खुशी में गुलाम मोहम्मद मरी, हाकिम खान मरी, रईस वालू खान मरी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली बड़ी तादाद में शिरकत की है। गुलाम मोहम्मद मरी ने कहा कि रैली गोट बोत खान मरी से निकाली गई। अवाम ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब कराकर पार्टी से मोहब्बत का सबूत दिया है। हम अपने उम्मीदवारों को बड़ी लीड से जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौका पर सोमर खान मरी, अमीर बख्श मरी, नूर मोहम्मद मरी और बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार शाजिया मरी और जाम शबीर अली खान की कामयाबी की खुशी में गुलाम मोहम्मद मरी, हाकिम खान मरी, रईस वालू खान मरी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जबकि गुलाम मोहम्मद मरी ने कहा कि रैली कोट हूत खान मरी से निकाली गई। अवाम ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करवाकर पार्टी से मोहब्बत का सबूत दिया है। हम अपने उम्मीदवारों को बड़ी लीड जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौका पर सोमर खान मरी, अमीर बख्श मरी, नूर मोहम्मद मरी और बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद थे। डगरी समेत जिला मीरपुर खास की 4 सूबाई असम्बली और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं। मीरपुर खास 1 PS 45 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हरिराम ने 33,197 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। MKM के उम्मीदवार जफर अहमद खान कमाली 20,099 वोट लेकर दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। PS 46 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुल्फिकार अली शाह 51,656 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की। आजाद उम्मीदवार शुजा शाह 30,096 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PS 47 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नूर अहमद भरगड़ी 56,522 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की। आजाद उम्मीदवार फैसल काछीलो
17,420 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PS 48 से पीपल्स पार्टी के मीर तारिक अली खान तालपर 66,002 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि GDA के उम्मीदवार अरबाब इनायत ने 15,648 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। NA 211 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीर आफ्ताब हुसैन शाह 84,512 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आजाद उम्मीदवार सैयद अली नवाज शाह 53,880 वोट हासिल कर सके। NA 212 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर मुनव्वर टालपर ने 1,21,972 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि आजाद उम्मीदवार सैयद अली नवाज शाह 45,321 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पर रहे। कोट डीजी की PS 27 में 2 सियासी जमातों के कारकुन दोबारा लड़ पड़े। तल्ख कलामी और झगड़े की फायरिंग, डंडों और ईंटों से हमला, 5 कारकुन शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए कोट डीजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 2 कारकुनान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बताते चले कि कोट डीजी की PS 27 में 2 सियासी जमातों के कारकुन दोबारा लड़ पड़े। तल्ख कलामी और झगड़े के बाद फायरिंग, डंडों, ईंटों से हमले किए गए। 5 कारकुन शदीद जख्मी हो गए हैं, जबकि जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए कोट डीजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 कारकुनान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मरी के हल्का NA 51 से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड लताज सब्सती ने इलेक्शन नतीजा तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना था कि फॉर्म 45 के मुताबिक मैं 15,000 से जायद की लीड पर था, लेकिन रात की तारीकी में मेरे मैंडेट पर डाका डाला गया है। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त हल्का NA 51 तहसील कदर सैदान, तहसील कोहटा, तहसील कोटली सत्या और तहसील मरी के गुजूर अवाम से मुखातब हूँ। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और अजीज़ों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का इंतहाई मशकूर और ममनून कि आप लोगों ने मुझे एक बाहरी मैंडेट से नवाजा, लेकिन आज रात उस मैंडेट पे डाका डाला गया और मुझे अभी अभी पता चला है कि उस पर फॉर्म 47 जारी किया गया है, जिसमें मेरे अपोनेंट को जो है वो कामयाब करार दिया गया है। मेरे भाइयों, मेरे पास फॉर्म 45 की मुसद्दका नकूल मेरे पास मौजूद हैं और उनके मुताबिक मैं मोर देन 15,000 से ज़्यादा की लीड से जो है वो जीत चुका था। आज रात के अंधेरे में उस पर डाका डाल के मुझे जो है वो पीछे करने की कोशिश की, मुझे हराने की कोशिश की गई और मेरे अपोनेंट को जितवाने की कोशिश की, जो कि सरासर धांधली है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस मामले को ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं कोर्ट में जाने का हक महफूज रखता हूँ। ये सीट वापस ला के आपके कदमों में इंशाल्लाह रखूंगा और इनको बताऊंगा कि इस तरीके के मामलात जो है वो नहीं करने चाहिए। ये सरासर ज्यादती है, सरासर जुल्म है। अवाम के मैंडेट को चुरा के दूसरे के हाथ में थमा देना सरासर ज्यादती होगी। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस पे हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि मैं इसको कामयाबी से। हुजरा शाह मुकीम में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। शनाख्त तारिक के नाम से हुई हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। आपको एक बार फिर से बताते चले कि हुजरा शाह मुकीम में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। शनाख्त तारिक के नाम से हुई हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। लकी मरवत के 3 सूबाई हलकों पर DRO ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PK 105 पर PTI के हिमायत याफ्ता जोहर मोहम्मद कामयाब हुए। PK 107 पर आजाद उम्मीदवार तारिक सईद ने 34,400 वोट हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। PK 106 तहसील गजनी खेल पर डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह ने 32,238 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। NA 41 पर PTI के मरकजी रहनुमा शेर अफजल खान मरवत 1,17,988 वोट लेकर कामयाब हुए। आपको एक बार फिर बताते चलें, लकी मरवत के 3 सूबाई हलकों पर DRO ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PK 105 पर PTI के हिमायत याफ्ता जोहर मोहम्मद कामयाब हो गए। PK 107 पर आजाद उम्मीदवार तारिक सईद ने 34,400 वोट हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। PK 106 तहसील गजनी खेल पर डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह ने
32,238 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि NA 41 पर PTI के मरकजी रहनुमा शेर अफजल खान मरवत 1,17,988 वोट लेकर कामयाब हुए। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि उकाड़ा में हल्का NA 137 से आजाद हैसियत से जीतने वाले PTI के हिमायत याफ्ता सैयद रजा अली गिलानी ने किसी दूसरी पार्टी में जाने की तरदीद कर दी है। सैयद रजा अली गिलानी का कहना था कि जो लीडर कैद में है, जिसने मुझसे उम्मीद लगानी है, ये कैसे हो सकता है कि सैयदजादा उसे छोड़ दे। इस वक्त PTI के बानी को मेरी बेहद जरूरत है। मुखालिफिन जो अफवाहें फैला रहे हैं कि मेरी कोई डील हो चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, साथ नहीं छोड़ सकता। उसको जो कैद में है और उसने एक उम्मीद लगाई है मुझसे, तो कैसे हो सकता है कि एक सैयदजादा उसको छोड़ दे उस वक्त जब उसको मेरी बेहद ज़रूरत। सो आप लोग मुतमिन रहिए, ये मुखालफिन जो अफवाहें फैला रहे हैं कि जी पता नहीं क्या मेरी कोई डील हो चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कोई बन्नू सिटी पुलिस के एहलकार शहरियों को तहफ्फुज के बजाय बदमाशी पर उतर आए हैं। माजूर रिक्शा ड्राइवर को मार मार कर लहू लहान कर दिया। मुबैना तशद्दुद का शिकार गनी रहमान को जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गनी रहमान ने DPO से इंसाफ का मुतालबा किया है। इस हवाले से बन्नू सिटी पुलिस का मौकफ अभी तक सामने नहीं आया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि बन्नू सिटी पुलिस एहलकार शहरियों को तहफ्फुज के बजाय बदमाशी पर उतर आए हैं। माजूर रिक्शा ड्राइवर को मार मार कर लहू लहान कर दिया। मुबैना तशद्दुद का शिकार गनी रहमान को जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गनी रहमान ने DPO से इंसाफ का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से बन्नू सिटी पुलिस का मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। जुड्डू कौमी असम्बली के हल्का NA 212 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर मुनव्वर तालपुर और PS 48 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर तारिक तालपुर ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है। उम्मीदवारों की जुड्डू सिटी से तारीखी फतह हासिल करने की खुशी में पीपल्स पार्टी जुड्डू सिटी के सदर मीर इरफान तालपुर और चेयरमैन टाउन कमेटी जुड्डू मीर कामरान तालपुर की क़यादत में मीर इरफान तालपुर के बंगले से बहुत बड़ी जश्न जमहूरियत रैली निकाली गई। जश्न जमहूरियत रैली मीर इरफान तालपुर की रिहाइशगाह से शुरू होकर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए मीर इरफान तालपुर के बंगले पर इख्तिताम पजीर हुई। इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर जाले सारे रास्ते ढोल की थाप पर रक्स करते हुए भंगरे डालते रहे और जालों और कारकुनों ने वजीर आज़म बिलावल भुट्टो और जियो भुट्टो के नारे भी लगाए। इस मौका पर पीपल्स पार्टी जुड्डू सिटी के सदर मीर इरफान तालपुर और चेयरमैन टाउन कमेटी जुड्डू मीर कामरान तालपुर ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि जुड्डू के अवाम ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों मीर मुनव्वर तालपुर और मीर तारिक तालपुर को जुड्डू से तारीखी फतह दिलवाकर तारीख रकम कर दी है। बदीन में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। पीपल्स पार्टी के टिकट पर 5वीं बार मुंतखब हुआ हूँ। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बने इत्तेहाद को रद्द कर दिया। PS 69 से कामयाब उम्मीदवार मीरुल्लाह बख्श तालपुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पीपल्स पार्टी की जड़ें अवाम में हैं। हमारी कामयाबी सिंध के अवाम की कामयाबी है। अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। मेरे हल्के में अरबों रुपए के तरक्याती काम हुए। अब मेरा ध्यान सेहत और तालीम पर फोकस रहेगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होते ही अपने हल्के में तरक्याती कामों का जाल बिछाऊंगा। हल्का PS 42 पर इलेक्शन लड़ने वाले GDA रहनुमा जाम नफीस अली खान की तरफ से इलेक्शन में काम करने वाले वर्कर्स को सिंधी अजरक के तहाइफ पेश किए गए। इस मौका पर जाम नफीस अली खान ने कहा कि हल्के के अवाम का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे 48,000 वोट दिए। हिम्मत ना हारें, हम आपके हर दुख सुख में साथ रहेंगे। धांधली से हराया गया पोलिंग स्टेशन के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि हल्का PS 42 पर इलेक्शन लड़ने वाले GDA रहनुमा जाम नफीस अली खान की तरफ से इलेक्शन में काम करने वाले वर्कर्स को सिंधी अजरक के तहाइफ पेश किए गए। इस मौका पर जाम नफीस अली खान ने कहा कि हल्के के अवाम का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे 48,000 वोट दिए। हिम्मत ना हारें, हम आपके हर दुख सुख में साथ रहेंगे। धांधली से हराया गया पोलिंग स्टेशन के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे।
ओसी शाहपुर चाकर में इमरानी बरादरी के साबका चेयरमैन अब्दुल गफ्फार इमरानी, जनरल काउंसलर बाबर अमीर इमरानी, यूसी काउंसलर इरफान वकील, शबीर इमरानी, इमरानी अल्ताफ इमरानी, हाजी खान इमरानी और इसहाक इमरानी और दीगर ने सरदार ज़ादा बाबा गुलाम रसूल इमरानी के आरओ से नसीबाबाद में रिजल्ट न देने के खिलाफ सड़कों पर निकलकर शाहपुर चाकर सदावा नहर पुलिस चेक पोस्ट मुकम्मल बंद करके सख्त एहतजाज किया। पूरे शाहपुर चाकर की इमरानी बरादरी ने इस बात का मजम्मत किया और सख्त एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा है कि सरदार ज़ादा बाबा गुलाम रसूल इमरानी को नसीराबाद में रिजल्ट ना मिलने के खिलाफ एहतजाज किया गया। उनका कहना था कि जब तक सरदार ज़ादा बाबा गुलाम रसूल इमरानी को नाअहल नसीराबाद रिजल्ट नहीं देगा, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मुतालबा करते हुए कहा कि सरदार बाबा गुलाम रसूल इमरानी से इंसाफ किया जाए। खबर शामिल करें गंबट से। आपको बताएं कि महकमा आबपाशी के एहलकारों की मिलीभगत से किंग्स माइनर शाख से दरख्तों की गैर कानूनी कटाई जारी है। इस हवाले से कोहिनूर न्यूज ने वीडियो हासिल कर ली है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दरख्तों को काटकर रिक्शे पर लोड करके लिया जाया जा रहा है। महकमा आबपाशी के किसी भी आला हुकाम ने नोटिस नहीं लिया, जबकि करोड़ों रुपए मालियत की लकड़ी की रोजाना काटी जा रही है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि गंबट में महकमा आबपाशी के एहलकारों के मिलीभगत से गैंग माइनर शाख से दर्जनों की गैर कानूनी कटाई जारी है। इस हवाले से कोहिनूर न्यूज ने वीडियो भी हासिल कर ली है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दरख्तों को काटकर रिक्शे पर लोड करके ले जाया जा रहा है, जबकि महकमा आबपाशी के किसी भी आला हुकाम ने नोटिस नहीं लिया है, जबकि करोड़ों रुपए मालियत की लकड़ी की रोजाना काटी जा रही है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि शाहदाद कोट के हल्का PS14 से GD उम्मीदवार मीर मुजफ्फर बरोही का हामियों के हमरा आरओ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने आरओ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कोटो मोटो चौक पर धरना, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। GD रहनुमा मुजफ्फर बरोही का कहना था कि आरओ ने तीसरे रोज भी 25 पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 जारी नहीं किया। 25 पोलिंग का रिजल्ट रोकना नताइज को मशकूक बना रहा है। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात को रद्द नहीं किया जा सकता। फौरी तौर पर 25 पोलिंग का फॉर्म 45 फराहम किया जाए। बड़ी तादाद में वोट मिलने पर PS14 के अवाम का मशकूर हूँ। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शाहदाद कोट के हल्का PS14 से GD उम्मीदवार मीर मुजफ्फर बरोही का हामियों के हमरा आरओ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने आरओ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कोटो मोटो चौक पर धरना, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। GD रहनुमा मनजर बरोही का कहना था कि आरओ ने तीसरे रोज भी 25 पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 जारी नहीं किया। 25 पोलिंग का रिजल्ट रोकना नताइज को मशकूक बना रहा है। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात को रद्द नहीं किया जा सकता। शाहपुर चाकर में इमरानी बरादरी के साबका चेयरमैन अब्दुल गफ्फार इमरानी, जनरल काउंसलर बाबर अमीर इमरानी, जनरल काउंसलर यूसी काउंसलर इरफान वकील, शबीर इमरानी, अल्ताफ इमरानी, हाजी खान इमरानी और इसहाक इमरानी ने नसीराबाद में आरओ के रिजल्ट न देने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शाहपुर चाकर सदावा नहर पर पुलिस चेक पोस्ट मुकम्मल बंद करके नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था सरदार ज़ादा बाबा गुलाम रसूल इमरानी को जब तक रिजल्ट नहीं दिया जाता एहतजाज जारी रहेगा। सरदार बाबा गुलाम रसूल इमरानी से इंसाफ किया जाए। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन से इंसाफ करने का मुतालबा किया है। आपको एक बार फिर बताते चलें, शाहपुर चाकर में इमरानी बरादरी के साबिका चेयरमैन अब्दुल गफ्फार इमरानी, जनरल काउंसलर बाबर अमीर इमरानी, यूसी काउंसलर इरफान वकील, शबीर इमरानी, अल्ताफ इमरानी, हाजी खान इमरानी और इसहाक इमरानी ने नसीराबाद में आरओ के रिजल्ट न देने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शाहपुर चाकर सदावा नहर पर पुलिस चेक पोस्ट मुकम्मल बंद करके नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था सरदार ज़ादा बाबा गुलाम रसूल इमरानी को जब तक रिजल्ट नहीं दिया जाता एहतजाज जारी रहेगा। सरदार बाबा गुलाम रसूल इमरानी से इंसाफ किया जाए। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन से इंसाफ का मुतालबा किया है। ओस्ता मोहम्मद में मुख्तलिफ चौराहों पर पीपल्स पार्टी के जालों की NA 255 और PB 14 में बोगस रिजल्ट फराहम करने पर हड़ताल, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मछली पुल पर धरना दे दिया है। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के जिला सदर सैयद यार मोहम्मद शाह, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन बलोचिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी शान साकिब अबरू और दीगर भी मौजूद थे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ओस्ता मोहम्मद में
मुख्तलिफ चौराहों पर पीपल्स पार्टी के जालों की NA 255 और PB 14 में बोगस रिजल्ट फराहम करने पर हड़ताल, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मछलीपुर पर धरना दे दिया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के जिलाई सदर सैयद ब्यार मोहम्मद शाह, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन बलोचिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी शान साकिब अबड़ू और दीगर भी मौजूद थे। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजिंदा में शरानी कबीले के गयूर अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ सफ़े आ रहा है। दहशत गर्दों के हमले के नतीजे में इलाके के अवाम मौका पर जमा हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा दहशत गर्दों का घेराव किया और तीनों दहशत गर्दों को मार दिया गया। तमाम शहरियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर मदद की और उनके शाना बशाना लड़ाई की। दराजिंदा में सुबह दहशत गर्दों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में SHO दीन मोहम्मद शहीद हो गए। दहशत गर्दों ने पुलिस मोबाइल पर उस वक्त हमला किया जब वो गश्त पर थी। SHO दीन मोहम्मद इलाके में एक अच्छी शोहरत के मालिक थे और फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर थे। हलाक होने वाले दहशत गर्दों का नाम खालिक और हयातुल्लाह बताया गया। तीसरे दहशत गर्द की शनाख्त जारी है। दराजिंदा के गयूर अवाम का कहना था कि हम हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ अमली तौर पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। इससे पहले भी कई दफा लकी मरवत के अवाम ने दहशत गर्दों के खिलाफ फौज के शाना बशाना लड़ाई की और एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस दराजिंदा की अवाम ने साबित किया है कि निहत्ते अवाम को निशाना बनाने वाले और भत्ताखोरी करने वाले खारिज का वजूद हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम ने ओहद किया है कि सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर हर हद तक जाएंगे ताकि इलाके में देर पा अमन का कयाम मुमकिन हो सके। आपको एक बार फिर बताते चलें, डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजिंदा में शेरानी कबीले के गयूर अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना दहशत गर्दों के खिलाफ सफ़े आरा होकर दहशत गर्दों के हमले के नतीजे में इलाके के अवाम मौका पर जमा हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा दहशत गर्दों का घेराव किया और तीनों दहशत गर्दों को मार दिया गया। तमाम शहरियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर मदद की और उनके शाना बशाना लड़ाई की। दराजिंदा में सुबह दहशत गर्दों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में SHO दीन मोहम्मद शहीद हो गए। दहशत गर्दों ने पुलिस मोबाइल पर उस वक्त हमला किया जब वो गश्त पर थी। SHO दीन मोहम्मद इलाके में एक अच्छी शोहरत के मालिक थे और फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर थे। हलाक होने वाले दहशत गर्दों का नाम खालिक और हयातुल्लाह बताया गया। तीसरे दहशत गर्द की शनाख्त की जा रही है। दराजिंदा के गयूर अवाम का कहना था कि हम हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ अमली तौर पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। इससे पहले भी कई दफा लकी मरवत के अवाम ने दहशत गर्दों के खिलाफ फौज के शाना बशाना लड़ाई की और एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस दराजिंदा की अवाम ने साबित किया है कि निहत्ते अवाम को निशाना बनाने वाले और भत्ताखोरी करने वाले खारिज का वजूद हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम ने ओहद किया कि सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर हर हद तक जाएंगे ताकि इलाके में देर पा अमन का कयाम मुमकिन हो सके। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने आम इंतखाबात 2024 के कामयाब इनेकाद पर पूरी पाकिस्तानी कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आम इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान कौम के नाम पैगाम जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम के अपने हक के राय दही के इस्तेमाल के लिए आजादाना और बिला रोक टोक शरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत और एहलकार बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने के लिए हमारी सबसे ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि कौमी मीडिया, सिविल सोसाइटी, सिविल इंतजामिया और अदलिया के अरकान के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मशक के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया है। तमाम जमहूरी कुव्वतों के नुमाइंदे मुत्तहद हुकूमत पाकिस्तान की मतनू सियासत और तकसीरियत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है।
कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शफा बख्श राब्ते की जरूरत है। पोलराइजेशन और इंतशार 250 मिलियन आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं है। जनरल आसिम मुनीर ने अपने पैगाम में कहा कि इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। सियासी क़यादत और उनके कारकुनों को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवाम की खदमत करने की कोशिश को हम अहम करना चाहिए, जो जमहूरियत को फाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। उधर बरतानिया ने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई, ताहम इंतखाबात में वोट डालने के वालों की तारीफ करते हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून की जानिब से पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से जारी बयान में कहा गया कि पाक बरतानिया देरीना ताल्लुकात से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हमारे लोगों के दरमियान मजबूत रवाबत है। इंतखाबात की शफाफियत और शमूलियत के फुकदान पर खदशात को भी तस्लीम करते हैं। अहम इस्लाहात के लिए मैंडेट के साथ अवामी हुकूमत का इंतखाब जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें अफसोस है कि तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। कुछ सियासी रहनुमाओं को इंतखाबात में शिरकत से रोकने के लिए कानूनी तरीक़ाकार का गलत इस्तेमाल किया गया। पोलिंग डे पर इंटरनेट बंदिश नताइज में ताखीर और गिनती में बेज़ाब्तगियों के दावों को भी नोट करते हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून ने कहा कि पाकिस्तान की अगली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी हुकाम मालूमात तक रसाई और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखें। पाकिस्तान के तमाम शहरियों और बरादरियों के लिए मसावी मफादात और इंसाफ के साथ नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो दूसरी जानिब अमेरिका ने कहा कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन के दौरान इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जाम पर फिक्रमंद है और इस दौरान गैर जरूरी पाबंदियों की मज़ामत करते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान के जमहूरी और इंतखाबी इदारों ने महफूज इंतखाबी अमल को मुकम्मल किया है। पोलिंग वर्कर्स, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों और इंतखाबी मुबस्सरीन को इंतखाबी अमल का हिस्सा बनाने पर पाकिस्तान को सराहते हैं। हमने बैनुल अक़वामी और मकामी इंतखाबी मुबस्सरीन के तज़किये का जायजा लिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम इंतखाबात के दौरान गैर ज़रूरी पाबंदियों की मज़म्मत करते हैं और इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर फिक्रमंद है। उनकी मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अब हम बर वक्त और मुकम्मल नताइज के मुंतज़िर हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाना जरूरी है। बेशक कोई सियासी जमात पाकिस्तान में हुकूमत बनाए, हम अपने सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का माहौल बनाने के लिए पुरअज़्म है। ऐसा महफूज माहौल बनाया जाए जो पाकिस्तानी अवाम को अमन, जमहूरियत और तरक्की फराहम करे जिसके वो हकदार हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें, अमेरिका ने कहा है कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन के दौरान इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर फिक्रमंद हैं और इस दौरान गैर जरूरी पाबंदियों की मज़म्मत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान के जमहूरी और इंतखाबी इदारों ने महफूज इंतखाबी अमल को मुकम्मल किया। पोलिंग वर्कर्स, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों और इंतखाबी मुबस्सरीन को इंतखाबी अमल का हिस्सा बनाने पर पाकिस्तान को सराहते हैं। हमने बैनुल अक़वामी और मकामी इंतखाबी मुबस्सरीन के तज्ज़िये का जायजा लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि हम इंतखाबात के दौरान गैर जरूरी पाबंदियों की मज़म्मत करते हैं और इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर फिक्रमंद हैं। उनकी मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अब हम बर वक्त और मुकम्मल नताइज के मुंतज़िर हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाना जरूरी है, चाहे कोई सियासी जमात पाकिस्तान में हुकूमत बनाए। हम अपने सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का माहौल बनाने के लिए भी पुरअज़्म हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार।